کر دے گی کہ ایک ایسے انسان سے میں کیسے رشتہ نبھا سکتی ہوں جو آلریڈی 2 عورتوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ اور ناظرین، جب مطہر اپنی امی کو رضا کرتی ہے کہ اب چلے میرے لیے شادی کر دے اور دونوں سویرا کے گھر رشتے کرنے چلتے ہیں، تو وہاں پر سویرا کی ماں خوب بے عزتی کر کے مطہر کو اپنے گھر سے نکالتا ہے کہ مطہر، مجھے تم سے بالکل اس بات کی امید نہیں تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم سویرا کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتے ہو۔ تمہارا یہ منحوس چہرہ میں آئندہ اپنے گھر میں دیکھ کر بھی برداشت نہیں کر سکوں گی، اس لیے مہربانی کر کے آئندہ یہاں مت آئے۔ ویور سویرا کی بدحال ہوگی، لیکن سویرا کو بھی اس بات کی خوشی ہوگی کہ مطہر سے ابھی تک میرے شادی نہیں ہوئی ہے، اگر یہ شادی ہو جاتی اور پھر میں اصلیت سے خبر ہو جاتی تو بات بہت شرمندگی کی تھی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مطہر تنہا رہ جائے گا اور اسے یہ پتہ چلے گی کہ میں نے جو زیادتی فاطمہ کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ ویورز، اور اس طرح انیکا کو بھی احساس ہوگا کہ میں نے جو فاطمہ کو اپنی مکاری اور چالاکی سے برباد کی تھی اس کی سزا مجھے یقیناً بھگتنا پڑا۔ تو ویورز، انیکا اور مطہر اس حال میں دیکھ کر آپ کی کیا فیلنگز ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل فاسق کے اگلے ایپیسوڈ میں جنگ اب مطہر اور عمیر کے بیچ ہوگی۔ ویورز، عمیر مطہر سے بے انتہا نفرت کرنے لگا ہے۔ اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے آخر کار مطہر کی بربادی شروع ہو جاتی ہے اور عمیر جاتا ہے اور سویرا کو سارا سچ بتا دیتا ہے، جبکہ انیکا کو بھی تو مطہر پہلے سے ہی شک تھا کہ یہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور جب انیکا کی شک صحیح نکلتا ہے تو آسمان و زمین ایک کر کے بہت روتی ہے کہ مطہر، میں تو سمجھتی تھی کہ تم میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہو، اس لیے تم نے میرے لیے فاطمہ کو چھوڑ دی، لیکن تم اب تیسری شادی کر کے مجھے سویرا کے لیے چھوڑ دو گے۔ اور ویورز، آپ دیکھیں گے کہ اس لیے انیکا سویرا اور مطہر کو ایک ساتھ رہنے سے پہلے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مطہر مجھے آزاد کر دے۔ ویورز، مطہر تو خوش ہو جاتا ہے کہ میرے راستے سے کانٹا خود بخود میرے راہ سے نکل گئی، لیکن مطہر سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمیر نے اس کی بربادی جڑ سے کیا ہے۔ عمیر مطہر کی اصلیت سویرا کو بتا دیتا ہے اور سویرا سن کر مطہر سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی کہ ایک ایسے انسان سے میں کیسے رشتہ نبھا سکتی ہوں جو آلریڈی 2 عورتوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ اور ناظرین، جب مطہر اپنی امی کو رضا کرتی ہے کہ اب چلے میرے لیے شادی کر دے اور دونوں سویرا کے گھر رشتے کرنے چلتے ہیں، تو وہاں پر سویرا کی ماں خوب بے عزتی کر کے مطہر کو اپنے گھر سے نکالتا ہے کہ مطہر، مجھے تم سے بالکل اس بات کی امید نہیں تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم سویرا کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتے ہو۔ تمہارا یہ منحوس چہرہ میں آئندہ اپنے گھر میں دیکھ کر بھی برداشت نہیں کر سکوں گی، اس لیے مہربانی کر کے آئندہ یہاں مت آئے۔ ویور سویرا کی بدحال ہوگی، لیکن سویرا کو بھی اس بات کی خوشی ہوگی کہ مطہر سے ابھی تک میرے شادی نہیں ہوئی ہے، اگر یہ شادی ہو جاتی اور پھر میں اصلیت سے خبر ہو جاتی تو بات بہت شرمندگی کی تھی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مطہر تنہا رہ جائے گا اور اسے یہ پتہ چلے گی کہ میں نے جو زیادتی فاطمہ کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ ویورز، اور اس طرح انیکا کو بھی احساس ہوگا کہ میں نے جو فاطمہ کو اپنی مکاری اور چالاکی سے برباد کی تھی اس کی سزا مجھے یقیناً بھگتنا پڑا۔ تو ویورز، انیکا اور مطہر اس حال میں دیکھ کر آپ کی کیا فیلنگز ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل فاسق کے اگلے ایپیسوڈ میں جنگ اب مطہر اور عمیر کے بیچ ہوگی۔ ویورز، عمیر مطہر سے بے انتہا نفرت کرنے لگا ہے۔ اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے آخر کار مطہر کی بربادی شروع ہو جاتی ہے اور عمیر جاتا ہے اور سویرا کو سارا سچ بتا دیتا ہے، جبکہ انیکا کو بھی تو مطہر پہلے سے ہی شک تھا کہ یہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور جب انیکا کی شک صحیح نکلتا ہے تو آسمان و زمین ایک کر کے بہت روتی ہے کہ مطہر، میں تو سمجھتی تھی کہ تم میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہو، اس لیے تم نے میرے لیے فاطمہ کو چھوڑ دی، لیکن تم اب تیسری شادی کر کے مجھے سویرا کے لیے چھوڑ دو گے۔ اور ویورز، آپ دیکھیں گے کہ اس لیے انیکا سویرا اور مطہر کو ایک ساتھ رہنے سے پہلے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مطہر مجھے آزاد کر دے۔ ویورز، مطہر تو خوش ہو جاتا ہے کہ میرے راستے سے کانٹا خود بخود میرے راہ سے نکل گئی، لیکن مطہر سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمیر نے اس کی بربادی جڑ سے کیا ہے۔ عمیر مطہر کی اصلیت سویرا کو بتا دیتا ہے اور سویرا سن کر مطہر سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی کہ ایک ایسے انسان سے میں کیسے رشتہ نبھا سکتی ہوں جو آلریڈی 2 عورتوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ اور ناظرین، جب مطہر اپنی امی کو رضا کرتی ہے کہ اب چلے میرے لیے شادی کر دے اور دونوں سویرا کے گھر رشتے کرنے چلتے ہیں، تو وہاں پر سویرا کی ماں خوب بے عزتی کر کے مطہر کو اپنے گھر سے نکالتا ہے کہ مطہر، مجھے تم سے بالکل اس بات کی امید نہیں تھی،
मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम सवेरा को इतना बड़ा धोखा दे सकते हो। तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मैं आइंदा अपने घर में देख कर भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, इसलिए मेहरबानी करके आइंदा यहाँ मत आए। व्यूअर, सवेरा की बदहाल होगी, लेकिन सवेरा को भी इस बात की खुशी होगी कि मुताहिर से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अगर ये शादी हो जाती और फिर मैं असलियत से खबर हो जाती तो बात बहुत शर्मिंदगी की थी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुताहिर तन्हा रह जाएगा और उसे ये पता चलेगी कि मैंने जो ज़्यादती फातिमा के साथ किया था इसकी सज़ा मुझे मिल गई है। व्यूअर्स, और इस तरह अनीका को भी एहसास होगा कि मैंने जो फातिमा को अपनी मक्कारी और चालाकी से बर्बाद की थी इसकी सज़ा मुझे यकीनन भुगतना पड़ा। तो व्यूअर्स, अनीका और मुताहिर इस हाल में देखकर आपकी क्या फीलिंग्स है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फासिक के अगले एपिसोड में जंग अब मुताहिर और उमेर के बीच होगी। व्यूअर्स, उमेर मुताहिर से बेइंतहा नफरत करने लगा है। अगले किस्त में आप देखेंगे आखिरकार मुताहिर की बर्बादी शुरू हो जाती है और उमेर जाता है और सवेरा को सारा सच बता देता है। जबकि अनीका को भी तो मुताहिर पहले से ही शक था कि शादी करना चाहता है और जब अनीका की शक सही निकलता है तो आसमान और ज़मीन एक करके बहुत रोती है कि मुताहिर, मैं तो समझती थी कि तुम मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमने मेरे लिए फातिमा को छोड़ दी, लेकिन तुम अब तीसरी शादी करके मुझे सवेरा के लिए छोड़ दोगे। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसलिए अनीका सवेरा और मुताहिर को एक साथ रहने से पहले ये फैसला करती है कि मुताहिर मुझे आज़ाद कर दे। व्यूअर्स, मुताहिर तो खुश हो जाता है कि मेरे रास्ते से कांटा खुद ब खुद मेरे राह से निकल गई, लेकिन मुताहिर सोच भी नहीं सकता कि उमेर ने इसकी बर्बादी जड़ से किया है। उमेर मुताहिर की असलियत सवेरा को बता देता है और सवेरा सुनकर मुताहिर से शादी करने से इनकार कर देगी कि एक ऐसे इंसान से मैं कैसे रिश्ता निभा सकती हूँ जो ऑलरेडी 2 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और नाज़रीन, जब मुताहिर अपनी अम्मी को रज़ा करती है कि अब चले मेरे लिए शादी कर दे और दोनों सवेरा के घर रिश्ते करने चलते तो वहाँ पर सवेरा की माँ खूब बेइज्जती करके मुताहिर को अपने घर से निकालता है कि मुताहिर, मुझे तुमसे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम सवेरा को इतना बड़ा धोखा दे सकते हो। तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मैं आइंदा अपने घर में देख कर भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, इसलिए मेहरबानी करके आइंदा यहाँ मत आए। व्यूअर, सवेरा की बदहाल होगी, लेकिन सवेरा को भी इस बात की खुशी होगी कि मुताहिर से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अगर ये शादी हो जाती और फिर मैं असलियत से खबर हो जाती तो बात बहुत शर्मिंदगी की थी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुताहिर तन्हा रह जाएगा और उसे ये पता चलेगी कि मैंने जो ज़्यादती फातिमा के साथ किया था इसकी सज़ा मुझे मिल गई है। व्यूअर्स, और इस तरह अनीका को भी एहसास होगा कि मैंने जो फातिमा को अपनी मक्कारी और चालाकी से बर्बाद की थी इसकी सज़ा मुझे यकीनन भुगतना पड़ा। तो व्यूअर्स, अनीका और मुताहिर इस हाल में देखकर आपकी क्या फीलिंग्स है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फासिक के अगले एपिसोड में जंग अब मुताहिर और उमेर के बीच होगी। व्यूअर्स, उमेर मुताहिर से बेइंतहा नफरत करने लगा है। अगले किस्त में आप देखेंगे आखिरकार मुताहिर की बर्बादी शुरू हो जाती है और उमेर जाता है और सवेरा को सारा सच बता देता है। जबकि अनीका को भी तो मुताहिर पहले से ही शक था कि शादी करना चाहता है और जब अनीका की शक सही निकलता है तो आसमान और ज़मीन एक करके बहुत रोती है कि मुताहिर, मैं तो समझती थी कि तुम मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमने मेरे लिए फातिमा को छोड़ दी, लेकिन तुम अब तीसरी शादी करके मुझे सवेरा के लिए छोड़ दोगे। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसलिए अनीका सवेरा और मुताहिर को एक साथ रहने से पहले ये फैसला करती है कि मुताहिर मुझे आज़ाद कर दे। व्यूअर्स, मुताहिर तो खुश हो जाता है कि मेरे रास्ते से कांटा खुद ब खुद मेरे राह से निकल गई, लेकिन मुताहिर सोच भी नहीं सकता कि उमेर ने इसकी बर्बादी जड़ से किया है। उमेर मुताहिर की असलियत सवेरा को बता देता है और सवेरा सुनकर मुताहिर से शादी करने से इनकार कर देगी कि एक ऐसे इंसान से मैं कैसे रिश्ता निभा सकती हूँ जो ऑलरेडी 2 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और नाज़रीन, जब मुताहिर अपनी अम्मी को रज़ा करती है कि अब चले मेरे लिए शादी कर दे और दोनों सवेरा के घर रिश्ते करने चलते तो वहाँ पर सवेरा की माँ खूब बेइज्जती करके मुताहिर को अपने घर से निकालता है कि मुताहिर, मुझे तुमसे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी,
मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम सवेरा को इतना बड़ा धोखा दे सकते हो। तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मैं आइंदा अपने घर में देख कर भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, इसलिए मेहरबानी करके आइंदा यहाँ मत आए। व्यूअर, सवेरा की बदहाल होगी, लेकिन सवेरा को भी इस बात की खुशी होगी कि मुताहिर से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अगर ये शादी हो जाती और फिर मैं असलियत से खबर हो जाती तो बात बहुत शर्मिंदगी की थी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुताहिर तन्हा रह जाएगा और उसे ये पता चलेगी कि मैंने जो ज़्यादती फातिमा के साथ किया था इसकी सज़ा मुझे मिल गई है। व्यूअर्स, और इस तरह अनीका को भी एहसास होगा कि मैंने जो फातिमा को अपनी मक्कारी और चालाकी से बर्बाद की थी इसकी सज़ा मुझे यकीनन भुगतना पड़ा। तो व्यूअर्स, अनीका और मुताहिर इस हाल में देखकर आपकी क्या फीलिंग्स है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फासिक के अगले एपिसोड में जंग अब मुताहिर और उमेर के बीच होगी। व्यूअर्स, उमेर मुताहिर से बेइंतहा नफरत करने लगा है। अगले किस्म में आप देखेंगे आखिरकार मुताहिर की बर्बादी शुरू हो जाती है और उमेर जाता है और सवेरा को सारा सच बता देता है, जबकि अनीका को भी तो मुताहिर पहले से ही शक था कि शादी करना चाहता है। और जब अनीका की शक सही निकलता है तो आसमान और ज़मीन एक करके बहुत रोती है कि मुताहिर, मैं तो समझती थी कि तुम मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमने मेरे लिए फातिमा को छोड़ दी, लेकिन तुम अब तीसरी शादी करके मुझे सवेरा के लिए छोड़ दोगे। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसलिए अनीका सवेरा और मुताहिर को एक साथ रहने से पहले ये फैसला करती है कि मुताहिर मुझे आज़ाद कर दे। व्यूअर्स, मुताहिर तो खुश हो जाता है कि मेरे रास्ते से कांटा खुद ब खुद मेरे राह से निकल गई, लेकिन मुताहिर सोच भी नहीं सकता कि उमेर ने इसकी बर्बादी जड़ से किया है। उमेर मुताहिर की असलियत सवेरा को बता देता है और सवेरा सुनकर मुताहिर से शादी करने से इनकार कर देगी कि एक ऐसे इंसान से मैं कैसे रिश्ता निभा सकती हूँ जो ऑलरेडी दो औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और नाज़रीन, जब मुताहिर अपनी अम्मी को रज़ा करती है कि अब चले मेरे लिए शादी कर दे और दोनों सवेरा के घर रिश्ते करने चलते तो वहाँ पर सवेरा की माँ खूब बेइज्जती करके मुताहिर को अपने घर से निकालता है कि मुताहिर, मुझे तुमसे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम सवेरा को इतना बड़ा धोखा दे सकते हो। तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मैं आइंदा अपने घर में देख कर भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, इसलिए मेहरबानी करके आइंदा यहाँ मत आए। व्यूअर, सवेरा की बदहाल होगी, लेकिन सवेरा को भी इस बात की खुशी होगी कि मुताहिर से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अगर ये शादी हो जाती और फिर मैं असलियत से खबर हो जाती तो बात बहुत शर्मिंदगी की थी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुताहिर तन्हा रह जाएगा और उसे ये पता चलेगी कि मैंने जो ज़्यादती फातिमा के साथ किया था इसकी सज़ा मुझे मिल गई है। व्यूअर्स, और इस तरह अनीका को भी एहसास होगा कि मैंने जो फातिमा को अपनी मक्कारी और चालाकी से बर्बाद की थी इसकी सज़ा मुझे यकीनन भुगतना पड़ा। तो व्यूअर्स, अनीका और मुताहिर इस हाल में देखकर आपकी क्या फीलिंग्स है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फासिक के अगले एपिसोड में जंग अब मुताहिर और उमेर के बीच होगी। व्यूअर्स, उमेर मुताहिर से बेइंतहा नफरत करने लगा है। अगले किस्म में आप देखेंगे आखिरकार मुताहिर की बर्बादी शुरू हो जाती है और उमेर जाता है और सवेरा को सारा सच बता देता है, जबकि अनीका को भी तो मुताहिर पहले से ही शक था कि शादी करना चाहता है। और जब अनीका की शक सही निकलता है तो आसमान और ज़मीन एक करके बहुत रोती है कि मुताहिर, मैं तो समझती थी कि तुम मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमने मेरे लिए फातिमा को छोड़ दी, लेकिन तुम अब तीसरी शादी करके मुझे सवेरा के लिए छोड़ दोगे। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसलिए अनीका सवेरा और मुताहिर को एक साथ रहने से पहले ये फैसला करती है कि मुताहिर मुझे आज़ाद कर दे। व्यूअर्स, मुताहिर तो खुश हो जाता है कि मेरे रास्ते से कांटा खुद ब खुद मेरे राह से निकल गई, लेकिन मुताहिर सोच भी नहीं सकता कि उमेर ने इसकी बर्बादी जड़ से किया है। उमेर मुताहिर की असलियत सवेरा को बता देता है और सवेरा सुनकर मुताहिर से शादी करने से इनकार कर देगी कि एक ऐसे इंसान से मैं कैसे रिश्ता निभा सकती हूँ जो ऑलरेडी दो औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और नाज़रीन, जब मुताहिर अपनी अम्मी को रज़ा करती है कि अब चले मेरे लिए शादी कर दे और दोनों सवेरा के घर रिश्ते करने चलते तो वहाँ पर सवेरा की माँ खूब बेइज्जती करके मुताहिर को अपने घर से निकालता है कि मुताहिर, मुझे तुमसे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम सवेरा को इतना बड़ा धोखा दे सकते हो। तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मैं आइंदा अपने घर में देख कर भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, इसलिए मेहरबानी करके आइंदा यहाँ मत आए। व्यूअर, सवेरा की
بدحال ہوگی، لیکن سویرا کو بھی اس بات کی خوشی ہوگی کہ مطاہر سے ابھی تک میرے شادی نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ شادی ہو جاتی اور پھر میں اصلیت سے خبر ہو جاتی تو بات بہت شرمندگی کی تھی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مطاہر تنہا رہ جائے گا اور اسے یہ پتہ چلے گی کہ میں نے جو زیادتی فاطمہ کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ ویورز، اور اس طرح انیکا کو بھی احساس ہوگا کہ میں نے جو فاطمہ کو اپنی مکاری اور چالاکی سے برباد کی تھی اس کی سزا مجھے یقیناً بھگتنا پڑا۔ تو ویورز، انیکا اور مطاہر اس حال میں دیکھ کر آپ کی کیا فیلنگز ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل فاسق کے اگلے ایپیسوڈ میں جنگ اب مطاہر اور عمیر کے بیچ ہوگی۔ ویورز، عمیر مطاہر سے بے انتہا نفرت کرنے لگا ہے۔ اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے آخر کار مطاہر کی بربادی شروع ہو جاتی ہے اور عمیر جاتا ہے اور سویرا کو سارا سچ بتا دیتا ہے، جبکہ انیکا کو بھی تو مطاہر پہلے سے ہی شک تھا کہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور جب انیکا کی شک صحیح نکلتا ہے تو آسمان و زمین ایک کر کے بہت روتی ہے کہ مطاہر، میں تو سمجھتی تھی کہ تم میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہو، اس لیے تم نے میرے لیے فاطمہ کو چھوڑ دی، لیکن تم اب تیسری شادی کر کے مجھے سویرا کے لیے چھوڑ دو گے۔ اور ویورز، آپ دیکھیں گے کہ اس لیے انیکا سویرا اور مطاہر کو ایک ساتھ رہنے سے پہلے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مطاہر مجھے آزاد کر دے۔ ویورز، مطاہر تو خوش ہو جاتا ہے کہ میرے راستے سے کانٹا خود بخود میرے راہ سے نکل گئی، لیکن مطاہر سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمیر نے اس کی بربادی جڑ سے کیا ہے۔ عمیر مطاہر کی اصلیت سویرا کو بتا دیتا ہے اور سویرا سن کر مطاہر سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی کہ ایک ایسے انسان سے میں کیسے رشتہ نبھا سکتی ہوں جو آلریڈی 2 عورتوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ اور ناظرین، جب مطاہر اپنی امی کو رضا کرتی ہے کہ اب چلے میرے لیے شادی کر دے اور دونوں سویرا کے گھر رشتے کرنے چلتے ہیں، تو وہاں پر سویرا کی ماں خوب بے عزتی کر کے مطاہر کو اپنے گھر سے نکالتا ہے کہ مطاہر، مجھے تم سے بالکل اس بات کی امید نہیں تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم سویرا کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتے ہو، تمہارا یہ منحوس چہرہ میں آئندہ اپنے گھر میں دیکھ کر بھی برداشت نہیں کر سکوں گی، اس لیے مہربانی کر کے آئندہ یہاں مت آئے۔ ویور، سویرا کی بدحال ہوگی، لیکن سویرا کو بھی اس بات کی خوشی ہوگی کہ مطاہر سے ابھی تک میرے شادی نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ شادی ہو جاتی اور پھر میں اصلیت سے خبر ہو جاتی تو بات بہت شرمندگی کی تھی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مطاہر تنہا رہ جائے گا اور اسے یہ پتہ چلے گی کہ میں نے جو زیادتی فاطمہ کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ ویورز، اور اس طرح انیکا کو بھی احساس ہوگا کہ میں نے جو فاطمہ کو اپنی مکاری اور چالاکی سے برباد کی تھی اس کی سزا مجھے یقیناً بھگتنا پڑا۔ تو ویورز، انیکا اور مطاہر اس حال میں دیکھ کر آپ کی کیا فیلنگز ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل فاسق کے اگلے ایپیسوڈ میں جنگ اب مطاہر اور عمیر کے بیچ ہوگی۔ ویورز، عمیر مطاہر سے بے انتہا نفرت کرنے لگا ہے۔ اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے آخر کار مطاہر کی بربادی شروع ہو جاتی ہے اور عمیر جاتا ہے اور سویرا کو سارا سچ بتا دیتا ہے، جبکہ انیکا کو بھی تو مطاہر پہلے سے ہی شک تھا کہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور جب انیکا کی شک صحیح نکلتا ہے تو آسمان و زمین ایک کر کے بہت روتی ہے کہ مطاہر، میں تو سمجھتی تھی کہ تم میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہو، اس لیے تم نے میرے لیے فاطمہ کو چھوڑ دی، لیکن تم اب تیسری شادی کر کے مجھے سویرا کے لیے چھوڑ دو گے۔ اور ویورز، آپ دیکھیں گے کہ اس لیے انیکا سویرا اور مطاہر کو ایک ساتھ رہنے سے پہلے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مطاہر مجھے آزاد کر دے۔ ویورز، مطاہر تو خوش ہو جاتا ہے کہ میرے راستے سے کانٹا خود بخود میرے راہ سے نکل گئی، لیکن مطاہر سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمیر نے اس کی بربادی جڑ سے کیا ہے۔ عمیر مطاہر کی اصلیت سویرا کو بتا دیتا ہے اور سویرا سن کر مطاہر سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی کہ ایک ایسے انسان سے میں کیسے رشتہ نبھا سکتی ہوں جو آلریڈی 2 عورتوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ اور ناظرین، جب مطاہر اپنی امی کو رضا کرتی ہے کہ اب چلے میرے لیے شادی کر دے اور دونوں سویرا کے گھر رشتے کرنے چلتے ہیں، تو وہاں پر سویرا کی ماں خوب بے عزتی کر کے مطاہر کو اپنے گھر سے نکالتا ہے کہ مطاہر، مجھے تم سے بالکل اس بات کی امید نہیں تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم سویرا کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتے ہو، تمہارا یہ منحوس چہرہ میں آئندہ اپنے گھر میں دیکھ کر بھی برداشت نہیں کر سکوں گی، اس لیے مہربانی کر کے آئندہ یہاں مت آئے۔ ویور، سویرا کی بدحال ہوگی، لیکن سویرا کو بھی اس بات کی خوشی ہوگی کہ مطاہر سے ابھی تک میرے شادی نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ شادی ہو جاتی اور پھر میں اصلیت سے خبر ہو جاتی تو بات بہت شرمندگی کی تھی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مطاہر
मुताहिर तन्हा रह जाएगा और उसे ये पता चलेगी कि मैंने जो ज़्यादती फातिमा के साथ किया था इसकी सज़ा मुझे मिल गई है। व्यूअर्स, और इस तरह अनीका को भी एहसास होगा कि मैंने जो फातिमा को अपनी मक्कारी और चालाकी से बर्बाद की थी इसकी सज़ा मुझे यकीनन भुगतना पड़ा। तो व्यूअर्स, अनीका और मुताहिर इस हाल में देखकर आपकी क्या फीलिंग्स है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा स्लब फासिक के अगले एपिसोड में जंग अब मुताहिर और उमेर के बीच होगी। व्यूअर्स, उमेर मुताहिर से बेइंतहा नफरत करने लगा है। अगले किस्त में आप देखेंगे आखिरकार मुताहिर की बर्बादी शुरू हो जाती है और उमेर जाता है और सवेरा को सारा सच बता देता है। जबकि अनीका को भी तो मुताहिर पहले से ही शक था कि शादी करना चाहता है और जब अनीका की शक सही निकलता है तो आसमान और ज़मीन एक करके बहुत रोती है कि मुताहिर, मैं तो समझती थी कि तुम मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमने मेरे लिए फातिमा को छोड़ दी, लेकिन तुम अब तीसरी शादी करके मुझे सवेरा के लिए छोड़ दोगे। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसलिए अनीका सवेरा और मुताहिर को एक साथ रहने से पहले ये फैसला करती है कि मुताहिर मुझे आज़ाद कर दे। व्यूअर्स, मुताहिर तो खुश हो जाता है कि मेरे रास्ते से कांटा खुद ब खुद मेरे राह से निकल गई, लेकिन मुताहिर सोच भी नहीं सकता कि उमेर ने इसकी बर्बादी जड़ से किया है। उमेर मुताहिर की असलियत सवेरा को बता देता है और सवेरा सुनकर मुताहिर से शादी करने से इनकार कर देगी कि एक ऐसे इंसान से मैं कैसे रिश्ता निभा सकती हूँ जो ऑलरेडी 2 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और नाज़रीन, जब मुताहिर अपनी अम्मी को रज़ा करती है कि अब चले मेरे लिए शादी कर दे और दोनों सवेरा के घर रिश्ते करने चलते तो वहाँ पर सवेरा की माँ खूब बेइज्जती करके मुताहिर को अपने घर से निकालता है कि मुताहिर, मुझे तुमसे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम सवेरा को इतना बड़ा धोखा दे सकते हो। तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मैं आइंदा अपने घर में देख कर भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, इसलिए मेहरबानी करके आइंदा यहाँ मत आए। व्यूअर, सवेरा की बदहाल होगी, लेकिन सवेरा को भी इस बात की खुशी होगी कि मुताहिर से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अगर ये शादी हो जाती और फिर मैं असलियत से खबर हो जाती तो बात बहुत शर्मिंदगी की थी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुताहिर तन्हा रह जाएगा और उसे ये पता चलेगी कि मैंने जो ज़्यादती फातिमा के साथ किया था इसकी सज़ा मुझे मिल गई है। व्यूअर्स, और इस तरह अनीका को भी एहसास होगा कि मैंने जो फातिमा को अपनी मक्कारी और चालाकी से बर्बाद की थी इसकी सज़ा मुझे यकीनन भुगतना पड़ा। तो व्यूअर्स, अनीका और मुताहिर इस हाल में देखकर आपकी क्या फीलिंग्स है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा स्लब फासिक के अगले एपिसोड में जंग अब मुताहिर और उमेर के बीच होगी। व्यूअर्स, उमेर मुताहिर से बेइंतहा नफरत करने लगा है। अगले किस्त में आप देखेंगे आखिरकार मुताहिर की बर्बादी शुरू हो जाती है और उमेर जाता है और सवेरा को सारा सच बता देता है। जबकि अनीका को भी तो मुताहिर पहले से ही शक था कि शादी करना चाहता है और जब अनीका की शक सही निकलता है तो आसमान और ज़मीन एक करके बहुत रोती है कि मुताहिर, मैं तो समझती थी कि तुम मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमने मेरे लिए फातिमा को छोड़ दी, लेकिन तुम अब तीसरी शादी करके मुझे सवेरा के लिए छोड़ दोगे। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसलिए अनीका सवेरा और मुताहिर को एक साथ रहने से पहले ये फैसला करती है कि मुताहिर मुझे आज़ाद कर दे। व्यूअर्स, मुताहिर तो खुश हो जाता है कि मेरे रास्ते से कांटा खुद ब खुद मेरे राह से निकल गई, लेकिन मुताहिर सोच भी नहीं सकता कि उमेर ने इसकी बर्बादी जड़ से किया है। उमेर मुताहिर की असलियत सवेरा को बता देता है और सवेरा सुनकर मुताहिर से शादी करने से इनकार कर देगी कि एक ऐसे इंसान से मैं कैसे रिश्ता निभा सकती हूँ जो ऑलरेडी 2 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और नाज़रीन, जब मुताहिर अपनी अम्मी को रज़ा करती है कि अब चले मेरे लिए शादी कर दे और दोनों सवेरा के घर रिश्ते करने चलते तो वहाँ पर सवेरा की माँ खूब बेइज्जती करके मुताहिर को अपने घर से निकालता है कि मुताहिर, मुझे तुमसे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम सवेरा को इतना बड़ा धोखा दे सकते हो। तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मैं आइंदा अपने घर में देख कर भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, इसलिए मेहरबानी करके आइंदा यहाँ मत आए। व्यूअर, सवेरा की बदहाल होगी, लेकिन सवेरा को भी इस बात की खुशी होगी कि मुताहिर से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अगर ये शादी हो जाती और फिर मैं असलियत से खबर हो जाती तो बात बहुत शर्मिंदगी की थी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुताहिर तन्हा रह जाएगा और उसे ये पता चलेगी कि मैंने जो ज़्यादती फातिमा के साथ किया था इसकी सज़ा मुझे मिल गई है। व्यूअर्स, और इस तरह अनीका को भी एहसास होगा कि मैंने जो फातिमा को अपनी मक्कारी और चालाकी से बर्बाद की थी इसकी सज़ा मुझे यकीनन भुगतना पड़ा। तो व्यूअर्स, अनीका और मुताहिर इस हाल में देखकर आपकी क्या फीलिंग्स है,
अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा स्लब फासिक के अगले एपिसोड में जंग अब मुताहिर और उमेर के बीच होगी। व्यूवर्स, उमेर मुताहिर से बेइंतहा नफरत करने लगा है। अगले किस्त में आप देखेंगे आखिरकार मुताहिर की बर्बादी शुरू हो जाती है और उमेर जाता है और सवेरा को सारा सच बता देता है। जबकि अनिका को भी तो मुताहिर पहले से ही शक था कि शादी करना चाहता है और जब अनिका की शक सही निकलता है तो आसमान और ज़मीन एक करके बहुत रोती है कि मुताहिर, मैं तो समझती थी कि तुम मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमने मेरे लिए फातिमा को छोड़ दी, लेकिन तुम अब तीसरी शादी करके मुझे सवेरा के लिए छोड़ दोगे। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसलिए अनिका सवेरा और मुताहिर को एक साथ रहने से पहले ये फैसला करती है कि मुताहिर मुझे आज़ाद कर दे। व्यूअर्स, मुताहिर तो खुश हो जाता है कि मेरे रास्ते से कांटा खुद ब खुद मेरे राह से निकल गई, लेकिन मुताहिर सोच भी नहीं सकता कि उमेर ने इसकी बर्बादी जड़ से किया है। उमेर मुताहिर की असलियत सवेरा को बता देता है और सवेरा सुनकर मुताहिर से शादी करने से इनकार कर देगी कि एक ऐसे इंसान से मैं कैसे रिश्ता निभा सकती हूँ जो ऑलरेडी 2 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और नाज़रीन, जब मुताहिर अपनी अम्मी को रज़ा करती है कि अब चले मेरे लिए शादी कर दे और दोनों सवेरा के घर रिश्ते करने चलते तो वहाँ पर सवेरा की माँ खूब बेइज्जती करके मुताहिर को अपने घर से निकालता है कि मुताहिर, मुझे तुमसे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम सवेरा को इतना बड़ा धोखा दे सकते हो। तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मैं आइंदा अपने घर में देख कर भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, इसलिए मेहरबानी करके आइंदा यहाँ मत आए। व्यूअर, सवेरा की बदहाल होगी, लेकिन सवेरा को भी इस बात की खुशी होगी कि मुताहिर से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अगर ये शादी हो जाती और फिर मैं असलियत से खबर हो जाती तो बात बहुत शर्मिंदगी की थी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुताहिर तन्हा रह जाएगा और उसे ये पता चलेगी कि मैंने जो ज़्यादती फातिमा के साथ किया था इसकी सज़ा मुझे मिल गई है। व्यूअर्स, और इस तरह अनिका को भी एहसास होगा कि मैंने जो फातिमा को अपनी मक्कारी और चालाकी से बर्बाद की थी इसकी सज़ा मुझे यकीनन भुगतना पड़ा। तो व्यूअर्स, अनिका और मुताहिर इस हाल में देखकर आपकी क्या फीलिंग्स है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा स्लब फासिक के अगले एपिसोड में जंग अब मुताहिर और उमेर के बीच होगी। व्यूवर्स, उमेर मुताहिर से बेइंतहा नफरत करने लगा है। अगले किस्त में आप देखेंगे आखिरकार मुताहिर की बर्बादी शुरू हो जाती है और उमेर जाता है और सवेरा को सारा सच बता देता है। जबकि अनिका को भी तो मुताहिर पहले से ही शक था कि शादी करना चाहता है और जब अनिका की शक सही निकलता है तो आसमान और ज़मीन एक करके बहुत रोती है कि मुताहिर, मैं तो समझती थी कि तुम मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमने मेरे लिए फातिमा को छोड़ दी, लेकिन तुम अब तीसरी शादी करके मुझे सवेरा के लिए छोड़ दोगे। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसलिए अनिका सवेरा और मुताहिर को एक साथ रहने से पहले ये फैसला करती है कि मुताहिर मुझे आज़ाद कर दे। व्यूअर्स, मुताहिर तो खुश हो जाता है कि मेरे रास्ते से कांटा खुद ब खुद मेरे राह से निकल गई, लेकिन मुताहिर सोच भी नहीं सकता कि उमेर ने इसकी बर्बादी जड़ से किया है। उमेर मुताहिर की असलियत सवेरा को बता देता है और सवेरा सुनकर मुताहिर से शादी करने से इनकार कर देगी कि एक ऐसे इंसान से मैं कैसे रिश्ता निभा सकती हूँ जो ऑलरेडी 2 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और नाज़रीन, जब मुताहिर अपनी अम्मी को रज़ा करती है कि अब चले मेरे लिए शादी कर दे और दोनों सवेरा के घर रिश्ते करने चलते तो वहाँ पर सवेरा की माँ खूब बेइज्जती करके मुताहिर को अपने घर से निकालता है कि मुताहिर, मुझे तुमसे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम सवेरा को इतना बड़ा धोखा दे सकते हो। तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मैं आइंदा अपने घर में देख कर भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, इसलिए मेहरबानी करके आइंदा यहाँ मत आए। व्यूअर, सवेरा की बदहाल होगी, लेकिन सवेरा को भी इस बात की खुशी होगी कि मुताहिर से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अगर ये शादी हो जाती और फिर मैं असलियत से खबर हो जाती तो बात बहुत शर्मिंदगी की थी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुताहिर तन्हा रह जाएगा और उसे ये पता चलेगी कि मैंने जो ज़्यादती फातिमा के साथ किया था इसकी सज़ा मुझे मिल गई है। व्यूअर्स, और इस तरह अनिका को भी एहसास होगा कि मैंने जो फातिमा को अपनी मक्कारी और चालाकी से बर्बाद की थी इसकी सज़ा मुझे यकीनन भुगतना पड़ा। तो व्यूअर्स, अनिका और मुताहिर इस हाल में देखकर आपकी क्या फीलिंग्स है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा स्लब फासिक के अगले एपिसोड में जंग अब मुताहिर और उमेर के बीच होगी। व्यूवर्स, उमेर मुताहिर से बेइंतहा नफरत करने लगा है। अगले किस्त में आप देखेंगे आखिरकार मुताहिर की बर्बादी शुरू हो जाती है और उमेर जाता है और सवेरा को सारा सच बता देता है। जबकि अनिका को भी
तो मुताहिर पहले से ही शक था कि शादी करना चाहता है, और जब अनीका की शक सही निकलता है तो आसमान और ज़मीन एक करके बहुत रोती है कि मुताहिर, मैं तो समझती थी कि तुम मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमने मेरे लिए फातिमा को छोड़ दी, लेकिन तुम अब तीसरी शादी करके मुझे सवेरा के लिए छोड़ दोगे। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसलिए अनीका सवेरा और मुताहिर को एक साथ रहने से पहले ये फैसला करती है कि मुताहिर मुझे आज़ाद कर दे। व्यूअर्स मुताहिर तो खुश हो जाता है कि मेरे रास्ते से कांटा खुद ब खुद मेरे राह से निकल गई, लेकिन मुताहिर सोच भी नहीं सकता कि उमेर ने इसकी बर्बादी जड़ से किया है। उमेर मुताहिर की असलियत सवेरा को बता देता है और सवेरा सुनकर मुताहिर से शादी करने से इनकार कर देगी कि एक ऐसे इंसान से मैं कैसे रिश्ता निभा सकती हूँ जो ऑलरेडी दो औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और नाज़रीन, जब मुताहिर अपनी अम्मी को रज़ा करती है कि अब चले मेरे लिए शादी कर दे और दोनों सवेरा के घर रिश्ते करने चलते हैं, तो वहाँ पर सवेरा की माँ खूब बेइज्जती करके मुताहिर को अपने घर से निकालता है कि मुताहिर, मुझे तुमसे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम सवेरा को इतना बड़ा धोखा दे सकते हो। तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मैं आइंदा अपने घर में देख कर भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, इसलिए मेहरबानी करके आइंदा यहाँ मत आए। व्यूअर सवेरा की बदहाल होगी, लेकिन सवेरा को भी इस बात की खुशी होगी कि मुताहिर से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, अगर ये शादी हो जाती और फिर मैं असलियत से खबर हो जाती तो बात बहुत शर्मिंदगी की थी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुताहिर तन्हा रह जाएगा और उसे ये पता चलेगी कि मैंने जो ज़्यादती फातिमा के साथ किया था इसकी सज़ा मुझे मिल गई है। व्यूअर्स, और इस तरह अनीका को भी एहसास होगा कि मैंने जो फातिमा को अपनी मक्कारी और चालाकी से बर्बाद की थी इसकी सज़ा मुझे यकीनन भुगतना पड़ा। तो व्यूअर्स, अनीका और मुताहिर इस हाल में देखकर आपकी क्या फीलिंग्स है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फासिक के अगले एपिसोड में जंग अब मुताहिर और उमेर के बीच होगी। व्यूअर्स, उमेर मुताहिर से बेइंतहा नफरत करने लगा है। अगले किस्म में आप देखेंगे आखिरकार मुताहिर की बर्बादी शुरू हो जाती है और उमेर जाता है और सवेरा को सारा सच बता देता है, जबकि अनीका को भी तो मुताहिर पहले से ही शक था कि शादी करना चाहता है। और जब अनीका की शक सही निकलता है तो आसमान और ज़मीन एक करके बहुत रोती है कि मुताहिर, मैं तो समझती थी कि तुम मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमने मेरे लिए फातिमा को छोड़ दी, लेकिन तुम अब तीसरी शादी करके मुझे सवेरा के लिए छोड़ दोगे। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसलिए अनीका सवेरा और मुताहिर को एक साथ रहने से पहले ये फैसला करती है कि मुताहिर मुझे आज़ाद कर दे। व्यूअर्स, मुताहिर तो खुश हो जाता है कि मेरे रास्ते से कांटा खुद ब खुद मेरे राह से निकल गई, लेकिन मुताहिर सोच भी नहीं सकता कि उमेर ने इसकी बर्बादी जड़ से किया है। उमेर मुताहिर की असलियत सवेरा को बता देता है और सवेरा सुनकर मुताहिर से शादी करने से इनकार कर देगी कि एक ऐसे इंसान से मैं कैसे रिश्ता निभा सकती हूँ जो ऑलरेडी दो औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और नाज़रीन, जब मुताहिर अपनी अम्मी को रज़ा करती है कि अब चले मेरे लिए शादी कर दे और दोनों सवेरा के घर रिश्ते करने चलते हैं, तो वहाँ पर सवेरा की माँ खूब बेइज्जती करके मुताहिर को अपने घर से निकालता है कि मुताहिर, मुझे तुमसे बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम सवेरा को इतना बड़ा धोखा दे सकते हो। तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मैं आइंदा अपने घर में देख कर भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, इसलिए मेहरबानी करके आइंदा यहाँ मत आए। व्यूअर सवेरा की बदहाल होगी, लेकिन सवेरा को भी इस बात की खुशी होगी कि मुताहिर से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, अगर ये शादी हो जाती और फिर मैं असलियत से खबर हो जाती तो बात बहुत शर्मिंदगी की थी। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुताहिर तन्हा रह जाएगा और उसे ये पता चलेगी कि मैंने जो ज़्यादती फातिमा के साथ किया था इसकी सज़ा मुझे मिल गई है। व्यूअर्स, और इस तरह अनीका को भी एहसास होगा कि मैंने जो फातिमा को अपनी मक्कारी और चालाकी से बर्बाद की थी इसकी सज़ा मुझे यकीनन भुगतना पड़ा। तो व्यूअर्स, अनीका और मुताहिर इस हाल में देखकर आपकी क्या फीलिंग्स है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फासिक के अगले एपिसोड में जंग अब मुताहिर और उमेर के बीच होगी। व्यूअर्स, उमेर मुताहिर से बेइंतहा नफरत करने लगा है। अगले किस्म में आप देखेंगे आखिरकार मुताहिर की बर्बादी शुरू हो जाती है और उमेर जाता है और सवेरा को सारा सच बता देता है, जबकि अनीका को भी तो मुताहिर पहले से ही शक था कि शादी करना चाहता है। और जब अनीका की शक सही निकलता है तो आसमान और ज़मीन एक करके बहुत रोती है कि मुताहिर, मैं तो समझती थी कि तुम मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमने मेरे लिए फातिमा को छोड़ दी, लेकिन तुम अब तीसरी शादी करके मुझे सवेरा के लिए छोड़ दोगे। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसलिए अनीका सवेरा और मुताहिर को एक साथ
رہنے سے پہلے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مطہر مجھے آزاد کر دے۔ ویورز، مطہر تو خوش ہو جاتا ہے کہ میرے راستے سے کانٹا خود بخود میرے راز سے نکل گئی، لیکن مطہر سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمیر نے اس کی بربادی جڑ سے کیا ہے۔ عمیر مطہر کی اصلیت سویرا کو بتا دیتا ہے اور سویرا سن کر مطہر سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی کہ ایک ایسے انسان سے میں کیسے رشتہ نبھا سکتی ہوں جو آلریڈی 2 عورتوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ اور ناظرین، جب مطہر اپنی امی کو رضا کرتی ہے کہ اب چلے میرے لیے شادی کر دے اور دونوں سویرا کے گھر رشتے کرنے چلتے ہیں، تو وہاں پر سویرا کی ماں خوب بے عزتی کر کے مطہر کو اپنے گھر سے نکالتا ہے کہ مطہر، مجھے تم سے بالکل اس بات کی امید نہیں تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم سویرا کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتے ہو۔ تمہارا یہ منحوس چہرہ میں آئندہ اپنے گھر میں دیکھ کر بھی برداشت نہیں کر سکوں گی، اس لیے مہربانی کر کے آئندہ یہاں مت آئے۔ ویور، سویرا کی بدحال ہوگی، لیکن سویرا کو بھی اس بات کی خوشی ہوگی کہ مطہر سے ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی ہے، اگر یہ شادی ہو جاتی اور پھر میں اصلیت سے خبر ہو جاتی تو بات بہت شرمندگی کی تھی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مطہر تنہا رہ جائے گا اور اسے یہ پتہ چلے گی کہ میں نے جو زیادتی فاطمہ کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ ویورز، اور اس طرح نیکا کو بھی احساس ہوگا کہ میں نے جو فاطمہ